Hello students, now we are with the last lecture of this chapter 1, that is lecture 7 from this chapter, that is some basic concepts of chemistry. And in the last portion we will discuss the concentration of the solution and method of expressing the concentration. अब concentration और concentration को express करने के हमारे पास कौन कौन से अलग अलग methods हैं वो हम इसमें deal करेंगे. देखते हैं हमारे पास इस lecture में क्या क्या है. Yes. Now, first of all, we will study what is a solution. Solution क्या होता है? A solution is defined as the homogeneous mixture of two or more chemically non-reacting substances. Solution आपके पास homogeneous mixture है दो या दो से ज़्यादा chemically non-reacting substances का, यानी कि दो chemically non-reacting substances को आप mix कर दीजिए किस रेशो में, किसी भी रेशो में जिसमें वो mix हो सके, उनको मिक्स कर दीजिए किसी भी रेशो में, ठीक है, और जो उनका होमोजेनियस मिक्सचर बनेगा दैट इज नोन एज द सॉल्यूशन. आपको शायद याद हो तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में इसी चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था ऑल होमोजेनियस मिक्सचर्स आर कॉल्ड एज सॉल्यूशंस. सिंपली solution is a homogeneous mixture of two or more substances, so simply we can say all homogeneous mixtures are solutions. जितने भी homogeneous mixtures हैं वो क्या हैं, सब solutions हैं, they are solutions. And they are I have also discussed the one example of alloys. Alloy is also a homogeneous mixture. alloy भी एक homogeneous mixture है, so alloy को भी हम solution कह सकते हैं. और मैंने बताया था वहाँ पर what type of solution is alloy. It is a solid in solid solution, that where the solvent and the solute both are solid, one solid is mixed with other solid. So what are solutions? Solutions are the homogeneous mixture of two or more chemically non-reacting substances, and we can simply also say all homogeneous mixture are also called as solutions. Now in solution there are always two components. There can be more than two components also, but we are taking up here the binary solutions. So what are binary solutions? The solutions which are having only two components. One component which is present in a smaller amount, and that is the solute, and the component which is present in larger amount is known as solvent. For example, if at your home you prepare the sugar solution, आप क्या करते हैं, शुगर सोल्यूशन बनाते हैं तो वाटर के अंदर एक ग्लास ऑफ वाटर लेंगे, उसमें 2 चम्मच चीनी डाल देंगे तो क्या होगा, आपका शुगर सोल्यूशन बन जाएगा. हेयर विच इज़ इन लार्जर अमाउंट वाटर, विच इज़ इन लेसर अमाउंट शुगर, so water is the solvent and sugar is the solute. Now here we will take the next that the main topic, that is the concentration of the solution. How can we express the concentration of the solution? So what do you mean by concentration? The concentration of solution means the amount of solute present in a fixed amount of solvent or solution. अब concentration आपके पास क्या है, वह concentration क्या, concentration आपके पास amount of solute है जो एक fixed amount of solvent और solution में present है. हाँ जी, अब हम अगर एक केस लेते हैं यहाँ पर, अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर, हाँ जी, यहाँ पर हम एक केस लेते हैं कि हमारे पास एक कंटेनर है जिसके अंदर हमारे पास 2 लीटर वाटर है. क्या है, 2 लीटर वाटर है, 2 लीटर वाटर है हमारे पास एक, ठीक है. और दूसरा एक और कंटेनर है जिसमें हमारे पास 4 लीटर वाटर है. कितना वाटर है, 4 लीटर वाटर है, ठीक है. अब इस 4 लीटर वाटर के अंदर हम कितना अमाउंट शुगर का डालते हैं, वी विल ऐड 400 ग्राम ऑफ शुगर. हम 400 ग्राम शुगर का डालते हैं, 400 ग्राम, ठीक है. और इस 2 लीटर वाटर के अंदर हम कितना अमाउंट डालते हैं, इस 2 लीटर वाटर के अंदर हम कितना अमाउंट डालते हैं, हम डालते हैं 300 ग्राम. जी, 300 ग्राम ऐड कर रहे हैं. तो अब अगर मैं आपसे पूछूं which sample of solution or which of the two solution, that is the solution A and the solution B, which of the two solution will be more sweeter in taste, which is more sweeter, A और B, A और B में से कौन सा आपके पास
स्वीटर इन टेस्ट होगा, तो आप कहेंगे सोल्यूशन ए। अगर मैं कहूँ कि आपके पास सोल्यूशन ए के अंदर तो हमने शुगर सिर्फ 300 ग्राम ऐड किया है, जबकि सोल्यूशन बी के अंदर हमने 400 ग्राम शुगर का ऐड किया है, सोल्यूशन बी के अंदर हमने 400 ग्राम शुगर का ऐड किया, तो आपके पास तो जो 4 लीटर वाला सोल्यूशन है वो ज़्यादा स्वीट इन टेस्ट होना चाहिए। तो फिर आप क्या कहेंगे, नहीं, हमारे पास सोल्यूशन ए के अंदर शुगर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो फिर मैं नेक्स्ट सवाल आपसे यही पूछूंगा, दैट हाउ कैन यू से दैट द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इन ए इज़ मोर, शुगर की कंसंट्रेशन ए सोल्यूशन में ज़्यादा क्यों है। तो आप फिर कैलकुलेशन करके मुझे बताएंगे दैट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन हेयर 150 ग्राम ऑफ शुगर इज प्रेजेंट। यहाँ पर लीटर कितना प्रेजेंट है, 150 ग्राम इज प्रेजेंट, हेयर 150 ग्राम इज प्रेजेंट, and here only 100 gram is present in per liter of water. So which solution will have more amount of sugar per liter of water? Solution A. तो सोल्यूशन ए आपके पास ज़्यादा कंसंट्रेशन का हो गया, इसीलिए सोल्यूशन ए के अंदर शुगर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी एंड इट विल बी मोर स्वीट इन टेस्ट। तो for expressing the concentration or for telling the concentration of the solution, what we have calculated the amount of sugar which is solute here, amount of sugar in a definite amount of solvent, that is 1 liter of water. So same is the concentration. So what I have written here, that what is concentration, so concentration of a solution means सोल्यूशन की कंसंट्रेशन का मतलब यही होता है दैट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सोल्यूशन। तो अगर आपने किसी भी सोल्यूशन की कंसंट्रेशन को बताना है तो आप क्या बताएंगे, आप सिंपली यही बताएंगे कि इस सोल्यूशन के एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सोल्यूशन में कितना अमाउंट सोल्यूट का प्रेजेंट है, जितना अमाउंट सोल्यूट का प्रेजेंट है तो आपके पास क्या हो जाएगा, उतना ही ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी, सिंपल। तो in this way so we can easily understood that is what is concentration. So what is concentration? तो concentration of a solution, तो अगर हमें किसी भी solution की concentration बतानी है तो हमें क्या बताना पड़ेगा, बेसिकली हमें बताना पड़ेगा कि एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन के अंदर कितना अमाउंट सोल्यूट का प्रेजेंट है, ग्रेटर द अमाउंट ऑफ ग्रेटर द कंसंट्रेशन। तो यहाँ से आपको मैं फिर दोबारा रिपीट करूँगा, ये रिपीट मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए कंसंट्रेशन, सोल्यूशन की कंसंट्रेशन से मतलब क्या है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सोल्यूशन। और यहाँ से मैं एक और चीज़ को भी बताना चाहूँगा दैट व्हाट डज द वैल्यू ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन गिव्स अस, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन की वैल्यू हमें क्या इंफॉर्मेशन देगी, द वैल्यू ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन विल अगेन गिव अस द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन से मतलब क्या है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट, कंसंट्रेशन की वैल्यू मुझे बताएगी क्या, अमाउंट ऑफ सोल्यूट, किसके अंदर, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के अंदर। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, what is the amount of solvent, what is the fixed amount of solvent or solution? Now the fixed amount of solvent or solution will depend upon the method which will be used for expressing the concentration. कंसंट्रेशन को बताने के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हम फिक्स्ड अमाउंट सॉल्वेंट या सोल्यूशन किसका ले रहे हैं और कितना ले रहे हैं। तो द कंसंट्रेशन, again I am repeating the same thing, what does the concentration of solution means, amount of solute, what does the value of concentration of a solution gives us, amount of solute, and in amount of solute in a fixed amount of solvent and solution, and what is the fixed amount, that depend upon the method of expressing the concentration, amount of which substance is to be taken, fixed amount of which substance is to be taken, that is solvent or solution, that again depends upon the method of expressing the concentration. Now let's see what are the various methods of expressing the concentration. First, mass percent.
mass percent method or weight by weight percent. Now what does this mass percent means? As it is mass percent, so it will give us mass percent. It will give us the mass of solute in 100 mass of the solution, because it is percentage method, and in percentage method the value is given out of 100. So here the concentration, as it is a concentration method of expressing the concentration, it will give us the amount of the solute. So this method will give us the amount of solute in 100 amount of solution as per the percentage method, क्योंकि हमारे पास ये कंसंट्रेशन मेथड है, कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का मेथड है, तो क्या देगा मुझे देगा अमाउंट ऑफ सोल्यूट। ठीक है जी, कंसंट्रेशन मुझे अमाउंट ऑफ सोल्यूट। अब किस में से देगी, कितने अमाउंट में से देगी, क्योंकि ये परसेंटेज मेथड है, तो परसेंटेज में तो वैल्यू 100 में से आती है, तो ये वैल्यू मुझे किस में से अमाउंट बताएगा, 100 अमाउंट में से। ठीक है, अब क्योंकि ये मास परसेंटेज है, तो ये मुझे क्या देगा, ये मुझे अमाउंट ऑफ सोल्यूट देगा मास में, और किस में से वैल्यू बताएगा, 100 मास ऑफ द सॉल्यूशन में। अब मास को किस यूनिट में एक्सप्रेस करेंगे, जनरली हम इसको ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं। तो फिर ये मास परसेंट मुझे क्या बताएगा, इट विल गिव अस द मास परसेंट ऑफ सोल्यूट इन अ सॉल्यूशन विल गिव अस द मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। So what is the mass percent means? It is the, or it gives us, or it tells us the mass of solute in grams present in 100 gram of solution. Students, in every method you have to clearly understood what is the form in which the amount of solute is given and what is the fixed amount of solvent or solution taken. If you remember all those things, then you can clearly understood all the different forms of expressing the concentration. Now, one more thing here. Now, we have taken the fixed amount of solution. Why not the solvent? So students, remember simply one simple thing, that you will take the fixed amount of solvent only in one case. Fixed amount of solvent only in one case, that is the case of molality, which is represented by small m. Molality, only in that case we will take the fixed amount of solvent. In rest of the cases, in all the rest of the cases, we will take the fixed amount of solution. So simply remember this thing, you will clearly understood all the different forms. So again I am telling you what is mass percent. It gives us the, or it is the mass of the solute in grams present in 100 gram of your solution. How can we calculate the mass percent? Write down the mass of the solute in the numerator divided by total mass of the solution and multiply it by 100. Next, volume percent. Here the amount of solute is given in 100 amount of solution, because it is a percentage method, but as it is a volume percent, so it will give us the amount of solute in terms of volume, and again in 100 volume of solution, because it is a volume percent. So what is this volume percent means? It gives us the volume of solute in, अब वॉल्यूम की यूनिट क्या लेनी है, जनरली हम क्या लेते हैं, ml लेते हैं. So volume of solute in ml which is present in 100 ml of solution. रिलेशन क्या होगी, सेम रिलेशन जैसे ऊपर, बस सिर्फ मास की जगह हम क्या यूज करेंगे, वॉल्यूम यूज करेंगे इन टर्म्स ऑफ मिलीलीटर. Next is mass by volume percent. Here mass by volume percent. Here mass by volume percent means that the amount of solute is present in terms of mass and the amount of solution is taken in terms of volume. So mass by volume percent means amount of solute in grams present in 100 ml of solution. ये हमें क्या देगी कि कितना अमाउंट सोल्यूट का ग्राम्स में प्रेजेंट है 100 ml ऑफ सोल्यूशन में. कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेम रिलेशन यूज होगी. ऊपर जो आपके पास सोल्यूशन है, ऊपर जो वॉल्यूम है, वो जो अमाउंट है सोल्यूट का, वो हम किस में लेंगे, वो हम जो अमाउंट है सोल्यूट का वो मास की टर्म्स में लेंगे. इसकी टर्म्स में लेंगे, मास की टर्म्स में लेंगे, मास ऑफ सोल्यूट. It is the mass of solute that is divided by
that is divided by volume of solution. So mass by volume परसेंट हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100. मास ग्राम्स में होगा, वॉल्यूम आपके पास ml में होगा, तो इससे आपको मास बाय वॉल्यूम परसेंट मिल जाएगी. नेक्स्ट इज मोलैरिटी, molality and mole fraction. All the three are very important terms. You will use these terms more frequently throughout your chemistry. Now what is molarity? What is molarity? Molarity again gives us, अगर हम ओरिजिनल डेफिनेशन के लें तो कंसंट्रेशन हमें क्या देती है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट देती है. तो दिस कंसंट्रेशन टर्म विल ऑल्सो गिव अस द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, बट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स. इन अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ, एक फिक्स्ड अमाउंट में देगी, किसके फिक्स्ड अमाउंट में, इन द अमाउंट ऑफ सोल्यूशन. और कितना फिक्स्ड अमाउंट, दैट इज 1 लीटर. तो व्हाट इज मोलैलिटी, what is molarity? Molarity is the number of moles of solute, or molarity gives us the number of moles of solute present in number of moles of solute present in 1 liter of solution. So what is molarity? Molarity simply represents the number of moles of solute present per liter of solution or present in 1 liter of solution. अब इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, तो कैपिटल एम से डिनोट करते हैं. और इसकी यूनिट क्या है, इसको हम किस यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं, हम कैपिटल एम भी लिख सकते हैं उसको एक्सप्रेस करने के लिए, या फिर मोल पर लीटर भी लिख सकते हैं. एंड इट चेंजेस विद द चेंज इन टेम्परेचर. अब ये क्या है, हम देखते हैं मोलैरिटी को कैलकुलेट कैसे करेंगे. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स. मोल्स ऑफ सोल्यूट को हमने वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर से डिवाइड कर देना, यू विल गेट द मोलैरिटी इन मोल्स पर लीटर. नाउ व्हाट इज दिस, it changes with the change in temperature, because the molarity depends upon the volume of solution, and as you all know that volume of the substance will change with the change in temperature. Volume increase करता है, volume change करता है, volume increase करता है आपके पास temperature के साथ. So this means the molarity, as the volume changes with temperature, the molarity will also change. And how it will change? The molarity will decrease with the rise in temperature. क्योंकि volume increase करेगा, volume increase करते ही molarity decrease कर जाएगी. तो molarity decreases with the change, with the rise in temperature. And next is molality. Now you all remembered the thing which I told you in the previous slide, that is molality is the only case where we will use the, molality is the only case where we will use the fixed amount of solvent, that this will give us the amount of solute in a fixed amount of solvent. So what is molality? Molality of a solution is the number of moles of solute present per kg of solvent. जो 1 kg of solvent में present है, present per kg of solvent. So here the amount of solute is given in number of moles, and the fixed amount of solvent is taken, and that too is in kg. It is represented by, इसको represent कैसे करते हैं, स्मॉल m से, और जबकि मोलैरिटी को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एम से. इसकी यूनिट क्या है, इसको हम स्मॉल एम से भी डिनोट कर सकते हैं, और इसकी यूनिट मोल पर केजी भी लिख सकते हैं. इट डज नॉट चेंज विद द चेंज इन टेम्परेचर, बिकॉज इन दिस नंबर ऑफ मोल्स एंड मासेज आर इन्वॉल्व which do not change with change in temperature. That's why molality does not change with rise in temperature or change in temperature. अब मोलैलिटी को हम किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे, किस तरीके से एक्सप्रेस फाइंड आउट करेंगे. मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. ऊपर मोल्स ऑफ सॉल्यूट लेंगे डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी लेंगे, तो आपको मोल्स पर केजी मिल जाएंगे, जिसको हम मोलैलिटी कहते हैं. तो मोलैरिटी और मोलैलिटी में डिफरेंस क्या है. मोलैलिटी गिव्स अस द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोलैलिटी आल्सो गिव्स अस द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, बट हियर मोलैलिटी गिव्स इन पर लीटर, हियर मोलैलिटी गिव्स इन पर केजी ऑफ, मोलैलिटी इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, हियर पर केजी ऑफ सॉल्वेंट. तो दोनों में डिफरेंस आपको पता लगा. दोनों अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बताएंगे नंबर ऑफ मोल्स में, मगर यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स पता लगेंगे पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. और यहाँ पर मोलैलिटी आपके पास किस में पता लगेगी, ये आपको बताएगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट. नाउ द नेक्स्ट टर्म मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन. नाउ व्हाट इज मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन of any component in the solution is equal to the number of moles of that component divided by the total number of moles of all the component.
वो कहता है किसी भी कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन अगर आपको निकालनी है, किसी भी कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन आपको निकालनी है, तो आप क्या करोगे, उस कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स को आप टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल दी कंपोनेंट के सम से डिवाइड कर दोगे। जैसे आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालनी है, इसको आप x2 से रिप्रेजेंट करते हैं, मोल फ्रैक्शन को हम x से रिप्रेजेंट करते हैं, और 2 जो सब्सक्रिप्ट लिया है वो हम किसके लिए ले रहे हैं, सॉल्यूट के लिए। जनरली सॉल्यूट के लिए हम 2 सब्सक्रिप्ट यूज़ करते हैं और सॉल्वेंट के लिए 1 सब्सक्रिप्ट यूज़ करते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को फाइंड आउट करने के लिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट को टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट से डिवाइड कर देंगे, दैट इज द टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। और सिंपली मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे, तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को हम क्या करेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को किससे डिवाइड कर देंगे, हाँ जी, किससे डिवाइड कर देंगे हम, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को हम डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन से। इस तरीके से हम बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन हम सॉल्वेंट की किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय, यानी कि जिस भी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन निकालने हैं उस कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स लेंगे और सभी कंपोनेंट के मोल्स के सम से डिवाइड कर देंगे। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट थिंग है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। सभी कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 के बराबर होता है। तो अगर आपको एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट का सॉल्यूशन है और सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन पता है, तो आप सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं बाय सब्सट्रैक्टिंग x2 फ्रॉम 1। x2 को 1 में से माइनस कर दीजिए, आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पता लग जाएगी। एंड दिस यू कैन इजीली कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ अदर कंपोनेंट फ्रॉम वन ऑफ द कंपोनेंट। ठीक है, नाउ वी विल टेक अप द लास्ट टर्म, दैट इज पार्ट्स पर मिलियन। नाउ व्हाट इज पार्ट्स पर मिलियन? Simply remember what is mass percent. What is mass percent? Mass percent gives us the mass of solute in 100 gram of solution. So we will call it as pph. हम इसको शॉर्ट में pph भी कह सकते हैं, पार्ट्स पर 100। कि 100 जो ग्राम्स आपने लिया था उसके अंदर कितना पार्ट, कितना मास, कितने ग्राम सॉल्यूट के हैं। सिंपल, पार्ट्स पर 100 भी कह सकते हैं इसको। तो पार्ट्स पर मिलियन में क्या होगा, वो आपको क्या देगा, इन 1 मिलियन ग्राम्स ऑफ द सॉल्यूशन। अगर हम 1 मिलियन ग्राम्स ऑफ द सॉल्यूशन लें तो उसके अंदर कितना पार्ट किसका होगा, सॉल्यूट का, दैट इज पार्ट्स पर मिलियन। सिंपल। तो पार्ट्स पर मिलियन को सिंपली अंडरस्टूड आप बड़े आराम से कर सकते हैं। व्हाट इज ppm? इट इज द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 मिलियन पार्ट्स बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन। अब ये पार्ट्स बाय मास का मतलब क्या है, सिंपली आप ग्राम्स ले लीजिए। तो अगर मैं कहूँ व्हाट इज ppm, इट इज द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 1 मिलियन ग्राम्स ऑफ द सॉल्यूशन। वही ग्राम्स को हम पार्ट्स भी कर सकते हैं, पार्ट्स बाय मास। तो व्हाट इज ppm? व्हाट इज ppm? ppm is simply, what is ppm? ppm is simply the mass of solute present in grams, mass of solute in grams present in 1 million मास ऑफ दी सॉल्यूशन। 1 मिलियन ग्राम्स अगर हम सॉल्यूशन के लें तो उसके अंदर कितना ग्राम सॉल्यूट का प्रेजेंट है, सिंपली। तो यहाँ पर आपके पास अब आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज होगा, कि यहाँ पर तो दिक्कत है थोड़ी सी। बोलोगे क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि आप हाँ जी, दिक्कत ये है कि ppm और pp मास परसेंट में, जिसको हमने pph भी कह दिया है, ठीक है, ppm और मास परसेंट में डिफरेंस क्या रहा? कुछ नहीं रहा। वो भी मास ऑफ सॉल्यूट देता है, ये भी मास ऑफ सॉल्यूट देता है। वो आउट ऑफ 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन देता है, ये आउट ऑफ 1 मिलियन ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन देता है। तो फिर इसको हम यूज़ कब करेंगे? इसको हम यूज़ क्यों कर रहे हैं जब वो भी हमें वही इन्फॉर्मेशन देता है? वो 100 में से दे रहा है, ये 1 मिलियन में से दे रहा है। ppm, the concentration of very dilute solution is always expressed in ppm। हम जो बहुत ही dilute solutions हैं उनकी concentration को एक्सप्रेस करने के लिए इस मेथड को यूज़ करते हैं, ठीक है। और बोलोगे बहुत dilute solutions कौन से होते हैं? dilute solutions like the solutions of pollutants in our environment,
हमारे वाटर में जो पोल्यूटेंट्स मिक्सड हैं, हमारे एयर में अंदर जो पोल्यूटेंट मिक्सड हैं, ठीक है, तो उनकी कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम ये मेथड यूज़ करते हैं. दे आर इन वेरी वेरी लेस अमाउंट, सो देयर अमाउंट इज एक्सप्रेस्ड यूजली इन टर्म्स ऑफ ppm. तो व्हाट इज ppm? सिंपल, अगर हम इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी ना चलें, सीधा देखें, इट इज सिंपली गिव्स अस द मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 1 मिलियन ग्राम्स ऑफ द सोल्यूशन. निकालना किस तरीके से, उसी तरीके से फाइंड आउट करना है आपने, उसी तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे. डिवाइड द मास ऑफ द सोल्यूट by the mass of the solution and multiply it by 10 to the power 6. Why 10 to the power 6? Because we have to calculate the mass in 1 million grams of the solution. अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे then it will give us the mass percent. Simple. अब बोलोगे ये ppm A क्या है? ppm A, it is for the ppm concentration for the A solute. जो solute A है उसके लिए हमने कैलकुलेट किया है, बस इसलिए सबस्क्रिप्ट लिख दिया, यहाँ पर mass of solute of A भी लिखा हुआ है. Now let's see how can we solve the different problems. अब प्रॉब्लम्स जो कंसंट्रेशन के ऊपर बेस्ड होंगे उनको सॉल्व करने के लिए आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको डाटा इंटरप्रेट करना जरूर आना चाहिए. That which data is given. Sometimes the data given in the question is in direct form, that this much amount of the solute is present in this much amount of solution or solvent. तो आपको दोनों चीज़ें अलग लगती हुई हैं. आप बड़े आराम से अमाउंट ऑफ सॉल्यूट भी आपको पता है, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट भी पता है, उसको फॉर्मूला इनपुट कीजिए, सीधा कैलकुलेट कर लीजिए. बट समटाइम यू आर गिवन द डाटा इन द फॉर्म ऑफ कंसंट्रेशन, यानी कि आपको एक कंसंट्रेशन के टर्म्स में डाटा गिवन है और आपको दूसरी कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है. लेट अस सपोज आपको मास परसेंट गिवन है, यू हैव टू फाइंड आउट मोलैरिटी. तो द डाटा इज गिवन इन टर्म्स ऑफ मास परसेंट, आपको मोलैरिटी के टर्म्स में कैलकुलेट करना है. So then you have to remember all these definitions which we have read earlier. That mass percent हमें क्या देता है हमें mass percent. अगर आप सोचेंगे बड़े आराम से, it gives us the mass of solute in grams present in 100 gram of solution. तो 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन आपका हो गया और मास ऑफ जो सोल्यूट है वो आपको कौन देगा, मास परसेंट. कितनी उसकी वैल्यू है वो मास ऑफ सोल्यूट दे देगा. याद करिए मेरे शब्द, मैंने यही आपसे कहा है that what the concentration tells us, or what is concentration? It is simply the amount of the solute. What the concentration value gives us? Amount of solute. In what? Amount of solute in what? In a fixed amount of solvent or solution. And what is that fixed amount? That is as per the method used for expressing the concentration. Now, let's take the problem 1. Calculate the molarity of NaOH solution. You have to calculate the molarity of NaOH solution prepared by dissolving 4 gram in enough water to form the 250 ml of the solution. आपको मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है एक सोल्यूशन की जिसमें 4 ग्राम आपने डिजोल्व किया 250 ml ऑफ सोल्यूशन के अंदर. ठीक है, वाटर के अंदर मिक्स करके आपने 250 ml ऑफ सोल्यूशन बना दिया, यानी कि इन 250 ml ऑफ सोल्यूशन यू हैव डिजोल्व 4 ग्राम. तो use the relation for the molarity. Molarity is equal to number of moles of solute divided by volume of solution liters. So for calculating molarity, you have to find out both these values. Number of moles of solute. Now moles of solute, amount is given in grams. Convert this into moles. How can we calculate the moles? That is mass by molar mass. So 4 by 40. What is 40? 40 is the molar mass of NaOH solution. Now dividing it 4 by 40, it will 0.1 mole. The number of moles of solute is 0.1. Now the volume of solution given is 250 ml, but the volume of solution required in this relation is in liters. So converted into liter, it is 0.25. Now put the values and calculate. The molarity comes out to be 0.4 m. It can be also written as capital M or in the unit mole per liter. Simple. आपको डाटा डायरेक्टली गिवन था, आपने रिलेशन यूज किया, उसको रिक्वायर्ड फॉर्म में चेंज किया और पुट कर दिया, वैल्यू कैलकुलेट कर लिया. नाउ there is one more question, little bit difficult. ठीक है, now you are given the density of 3m solution. Now see, here the data or information is given in terms of concentration. molarity के terms में डाटा given है, ठीक है, molarity के terms में डाटा given, and you have to calculate the molarity. आपको दूसरी concentration निकालनी है, बस अब देखिएगा ध्यान से किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, now the density of 3m solution, 3m's, here it should be read as 3 molar solution, molar, M-O-L-A-R, 3 molar solution. This capital M should be read as molar, and if it is small m, it should be read as molal.
MOLAL. So 3 molar solution of NaCl is given whose density is 1.25 gram per ml. Calculate the molarity of the solution. आपको उसकी molarity calculate करनी है. First write down the formula of molarity. Molarity का formula क्या है? Number of moles of solute divided by mass of solvent in kg. आपको दोनों वैल्यूज निकालनी है. किसके लिए? इस 3m सोल्यूशन के लिए, इस 3m सोल्यूशन के लिए जो आपको वैल्यू गिवन है, जो आपको सोल्यूशन गिवन है उसके अंदर आपको ये दोनों वैल्यूज निकालनी है. पुट कीजिए, इसी सोल्यूशन की मोलरिटी निकल जाएगी. अब देखिए ध्यान से. अब इसके अंदर इस 3m सोल्यूशन का मतलब क्या है? व्हाट डज दिस 3m सोल्यूशन मींस? 3 मोलर सोल्यूशन मींस 3 means the amount of solute. Because it is molarity, amount of solute is given in terms of moles. So 3 moles of solute is present in as per the molarity of the solution. Molarity में क्या fixed amount लेते हैं solution का? कितना amount लेते हैं? Liter, 1 liter of solution. So this 3m means 3 molar solution means 3 moles of solute. 3m Na solution means 3 moles of NaCl solute is present in 1 liter of solution. So in this 3m solution, amount of solute is given. Amount of solute is known. That is 3 moles. Now this value is calculated. That is 3 moles of solute is already known. Now this numerator is known. Now we have to calculate the mass of solvent. Now 3 moles are present in 1 liter of solution. Now to find out the mass of solvent in kg, you have to calculate first the mass of solvent. For this mass of 1 liter solution, first we will calculate the mass of 1 liter solution because the total amount of solution given here is 1 liter. Okay? So 1 liter means 1000 ml, and as per the density 1.25 gram per ml, the 1000 ml will be equal to 1250 gram. You can use the simple relation. Density is equal to mass by volume. Density किसके बराबर होता है? Mass by volume. तो mass किसके बराबर हो जाएगा? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी. तो वॉल्यूम आपके पास कितना है? 1000 ml और डेंसिटी कितना है? 1.25 ग्राम पर ml. क्योंकि इस डेंसिटी की यूनिट ग्राम पर ml थी इसलिए हमने वॉल्यूम को ml में कन्वर्ट कर दिया. ml से ml कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको आंसर किस में मिल जाएगा? इन ग्राम्स. ठीक है. नाउ द टोटल मास ऑफ सोल्यूशन इज 1250 ग्राम. नाउ दिस टोटल मास ऑफ सोल्यूशन कंटेन बोथ दी थिंग्स, solvent as well as solute. Now if we subtract the amount of solute from it, अगर हम solute का amount इसमें से निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा? solvent का amount. Now what is the amount of solute present in 1 liter solution? 3 moles. Now calculate the mass of 3 moles. 3 moles का mass कैसे निकालेंगे? mole into molar mass. ठीक है, 175.5 ग्राम. अब क्या कर देंगे? इसको आप माइनस कर देंगे आपके पास, तो कितना आ जाएगा ये? ठीक है. what is the mass of solvent? 1250 minus 175.5 ग्राम. ठीक है, इसको माइनस कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास 1074.5. इट इज नॉट 1074, इट इज 1024.5. सो द एक्चुअल फिगर विल बी 1024.5. नाउ द अमाउंट विल बी 102.5 and we require the mass of solvent in kg as in kg. So convert this into kg, it will be 1.0245 kg. Now what is the molarity of the solution? Now the moles of solute is 3 moles written, and mass of solvent in kg, it is again put the value and calculate. It will be 2.79 m or 2.79 mole per kg. आप किसी भी तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो सिंपल. तो आपने सबसे पहले ऐसे केसेस में आपको करना क्या है? मैंने क्या बताया आपको? पहले रिलेशन लिखिए, क्या क्या क्वांटिटी चाहिए उसको निकालते हैं. फिर आप जो कंसंट्रेशन गिवन है, द कंसंट्रेशन, द फॉर्म ऑफ कंसंट्रेशन विच इज गिवन, इंटरप्रेट दैट कंसंट्रेशन एज पर द डेफिनेशन. 3m solution means 3 moles of NaCl is present in 1 liter of solution. Now from that data find out both these values. So and we will put the values, the answer will be there. So in this way you can calculate the molarity of this solution. Now let's move on to next numerical. Here we are taking up one more thing. Commercially available concentrated hydrochloric acid, commercially available जो आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, that contain 38% HCl by mass. इसके अंदर HCl का concentration कितना है? 38% by mass. That is mass percent is given. What is the molarity of this solution? Again what I have said already earlier, that the data is given in terms of
some concentration term, concentration, and you have to calculate other concentration or concentration in some other form. So here 38% by mass is given data, and you have to calculate the molarity. The density is given here, 1.19 gram per centimeter cube. Second, what is the volume of concentrated HCl? ये जो HCl है वो concentrated HCl. What is the volume of this HCl is required to make 1 liter of 0.10 molar HCl. अब अगर इसकी मैं कंसनट्रेशन को डिक्रीज करके एक नया सोल्यूशन बनाना चाहता हूँ तो इसका कितना वॉल्यूम यूज़ करना पड़ेगा वो भी हमें लेना है, वो भी हमें कैलकुलेट करना है. हाउ कैन वी कैलकुलेट? यस, लेट्स मूविंग टुवर्ड्स द सॉल्यूशन. कैलकुलेशन ऑफ मोलैरिटी. First we will calculate the molarity and then we will calculate the volume of concentrated HCl required in second part. 38% HCl by mass means, what does this means? This value will give us the mass of solute. That this means 38 gram of HCl is present. Because it is percentage method, is present in 100 gram of solution. So mass of solute is present, mass of solute is given and mass of solution is also given. Now as per the molarity, molarity के लिए हमें क्या चाहिए? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर. ये दोनों चीज़ें चाहिए. अब नंबर ऑफ मोल्स निकालिए तो नंबर ऑफ मोल्स 38 ग्राम के नंबर ऑफ मोल्स कितने बनेंगे? गिवन मास बाय मोलर मास. तो नंबर ऑफ मोल्स HCl के कितने आएंगे? 38 डिवाइड बाय 36.5 इसका मोलर मास. इट विल बी 1.05 मोल, 1.04 मोल. आपने लिख दिया. नाउ हेयर अब आपको वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कैलकुलेट करना है, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन. फॉर दिस डेंसिटी इज गिवन. नाउ डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम. डेंसिटी किसके बराबर होता है? मास ओवर वॉल्यूम के बराबर. तो वॉल्यूम किसके बराबर होगा? मास ओवर डेंसिटी. तो व्हाट इज मास? 100 ग्राम. डेंसिटी 1.19 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. यूनिट्स का थोड़ा ध्यान रखिएगा, दे मस्ट बी इन सेम यूनिट्स. तो यार ग्राम एंड ग्राम विल बी कैंसल्ड आउट, यू विल गेट द आंसर इन सेंटीमीटर क्यूब. एंड सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू मिलीलीटर. सेंटीमीटर क्यूब मिलीलीटर के बराबर होता है. तो 84.03 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 84.03 मिलीलीटर. नाउ कन्वर्ट दिस इनटू लीटर. उसको लीटर में कन्वर्ट कर दीजिए. एक बार लीटर में कन्वर्ट कर दिया तो वॉल्यूम भी आ गया आपके, नंबर ऑफ मोल्स आ गया. पुट दीज वैल्यूज, यू विल गेट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इन मोल पर लीटर. तो मोल पर लीटर में आपको मोलैरिटी पता लग गई. ठीक है. नाउ here we have to calculate what volume of this concentrated HCl is required in the second step. So if during of if any problem what is required, that we are diluting some solution or adding water to some solution to make the solution of some other concentration. And then the two solution, first is the concentrated solution and the diluted solution, they are related to each other. वो एक दूसरे के साथ related होते हैं. कैसे related होते हैं? As per the molarity equation. molarity equation से दोनों एक दूसरे के साथ related होते हैं. कैसे? That is the molarity and the product of molarity and volume of one solution will be equal to product of molarity and volume of the other solution. ये दोनों के बराबर होते हैं, दोनों का प्रोडक्ट. बोलोगे अगर हम ये जो इक्वेशन होती है, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, दिस इज कॉल्ड एज मोलैरिटी इक्वेशन. ये किस लिए होती है? कि हमारे पास एक कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है, उसको हमने डिलूट करके, डिलूट यानी कि वाटर ऐड करके हमने एक डिलूटेड सोल्यूशन बनाया. तो दोनों की मोलैरिटी और वॉल्यूम आपस में इस इक्वेशन से रिलेटेड होते हैं. m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2. अब ये इक्वालिटी क्यों होती है? अगर आप ध्यान से सोचें, छोटा सा हिंट दूंगा, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी. अगर आप ये सोचें कि ये दोनों इक्वल कैसे, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, तो अब m1 v1 हमें देगा क्या? जरा ध्यान से माइंड में याद कीजिए कि आपके पास हाँ जी मोलैरिटी होती किसके बराबर है? मोलैरिटी आपके पास होती किस चीज़ के बराबर है? हाँ जी, मोलैरिटी किस चीज़ के बराबर होती है आपके पास? जरा देखें ध्यान से. मोलैरिटी आपके पास होती है, मोलैरिटी इज इक्वल टू n बाई वी. मोलैरिटी n बाई वी के बराबर होती है. मोलैरिटी किसके बराबर होती है? n बाई वी के बराबर. और आपके पास अब नंबर ऑफ मोल्स आप कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम. तो एक सोल्यूशन की जो मोलैरिटी है और जो उसका वॉल्यूम है वो आपको क्या देंगे? वो देंगे आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट. और सोल्यूशन के अंदर जब आपने वाटर ऐड किया है उसको डिलूट करने के लिए, यू हैव नॉट चेंज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यू हैव सिंपली चेंज द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, नॉट द अमाउंट ऑफ सोल्यूट. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट तो दोनों केस में बराबर रहेंगे. इन दी केस
in the case of concentrated solution and in the case of diluted solution. So that's why we have put the m1 v1 value for both the solution equal to each other, and that is what the molarity equation is. m1 v1 is equal to m2 v2. तो बस इस तरीके से हम, यानी कि मोलैरिटी इक्वेशन, अब आपको पता लग गया होगा कि मोलैरिटी इक्वेशन किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं. मोलैरिटी इक्वेशन हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, कब यूज़ करते हैं? दैट व्हेन वी आर गिवन सम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन एंड वी हैव टू प्रिपेयर अ डाइल्यूटेड सॉल्यूशन फ्रॉम इट, देन देयर मोलैरिटी एंड वॉल्यूम आर रिलेटेड टू ईच अदर. और इससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एक सॉल्यूशन का मोलैरिटी या किसी भी एक सॉल्यूशन का वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं. अब जरा इस इक्वेशन में देखें क्या हमारे को. अब वो कह रहा है कि नाउ द मोलैरिटी ऑफ कंसर्न्ड सॉल्यूशन इज गिवन, you have to calculate the volume of this solution which is required to prepare the 1 liter volume of 0.1 molar solution of HCl. तो आपको diluted solution की molarity और volume दोनों गिवन है, 1 liter and 0.1. यहाँ पर आपको इसकी मोलैरिटी गिवन है, वो आपने ऊपर कैलकुलेट किया, तो उसका वॉल्यूम रिक्वायर्ड है वो आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं. v1 विल बी इक्वल टू, आपने दोनों तरफ यूनिट सेम लेनी होती है. मोलैरिटी मोल पर लीटर में होगा, वॉल्यूम आप दोनों तरफ अगर लीटर में लेते हैं तो दोनों तरफ लीटर में लीजिए, और अगर मिलीलीटर में लीजिए तो दोनों तरफ मिलीलीटर में लीजिए, मगर सेम लीजिए. ठीक है, तो यहाँ पर वॉल्यूम लीटर में था, तो ये वॉल्यूम जो v1 आया वो भी कैलकुलेशन के बाद किस में आया, लीटर्स में आया. और लीटर्स में वॉल्यूम कितना जो आया उसको आपने 1000 से मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर क्यूब यानी कि मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लिया. अभी मैंने आपको बताया था 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर. तो इस तरीके से मोलैरिटी इक्वेशन से आप जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का अमाउंट कितना रिक्वायर्ड है वो भी आप बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं. तो होप स्टूडेंट्स, ये आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड व्हाट इज concentration. What do you mean by concentration? What information does the concentration gives? What are the various methods of expressing the concentration, and how the problem based on concentration can be dealt? So with this we have finished the first chapter of our class 11, that is some basic concept of chemistry. तो आप सभी लोग इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से पढ़िए और अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन सभी सॉल्व कीजिए. आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कोई डिफिकल्टी नहीं है. बस जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने बताए उनको याद रखिएगा. ओके बच्चों, गुड बाय.